করে। হালেলুয়া। আমি সমস্তে ধ্যানর সহিত শুনিবা গুণবতী স্ত্রীଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ସେ ହାସ୍ୟ କରେ। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ଦେଖିକି ହସିବା ଲୋକ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ତର୍ଜମାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରେ। She shall rejoice for the future. ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ଲୋକ ଅଛୁ କି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ, ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସେ ହାସ୍ୟ କରେ ବା ଆନନ୍ଦ କରେ। ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6:34 ପଦ। ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ବାସ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କି କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିବା କି ଯେଉଁମାନେ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କିପରି ହେବ, ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କିପରି ହେବ, ଘର କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି। କେହି ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ଆମେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଟୁ। ସେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଉ ପଛେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ ପଛେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ଧନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରି ଯଦି ସେ ଦର୍ପ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ସେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ, ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେହି ସବୁ କାହାର ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନୁହେଁ, ଏଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଆମେ 21 ପଦରୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ନିଜେ ପଢି ଦଉଛି। ଲେଖା ଅଛି ସେ 31 ପଦରେ, ସେ ହିମ ଲାଗି ଆପଣା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ବରଫ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବରଫପାତ ହୁଏ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବରଫପାତ ସକାଶେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ, ରୋଡ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଶୀତ, ଥଣ୍ଡା, ବରଫପାତ ଜୀବନକୁ ଅତର୍କ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେ ହିମ ଲାଗି ଆପଣା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପରିବାର ହୁଏତ ଏପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ ଆସେ, ତଥାପି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ପରିବାର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାହାର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ
तीनोटी वस्त्र पिंधिचंती एई स्थान रे प्रकाश करा जाय 21 पद कहे प्रथम वस्त्र होछि सिंदूर वर्ण वस्त्र द्वितीय वस्त्र 22 पद कहे से आपणा निमंते चित्र विचित्र आच्छादन वस्त्र प्रस्तुत करे पुणी से शुभ्र घोम वस्त्र और धूम्र वर्ण वस्त्र पिंधे गुणवती स्त्री এই সমস্ত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত সিন্দুর বর্ণ বস্ত্র পিন্ধুছি সেই পরি শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র যাহাকু লিনেন গার্মেন্ট কোহা যায় সেই পরি ধূম্র বর্ণ বস্ত্র মানে বাইগণিয়া বস্ত্র এই গুণবতী স্ত্রী এই সমস্ত বস্ত্র পিন্ধিথিবা যোগু সে কহে মোর ভবিষ্যৎ কাল পাই মোর ভয় নাহি সিন্দুর বর্ণ বস্ত্র কহিলে কোন না এহা পাপ ক্ষমাকু দর্শায় এহা প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ রক্তকু দর্শায় যে রক্ত দ্বারা সে আচ্ছাদিত অটে যে রক্ত সকাশে তাহার পরিবারর পাপ ক্ষমা হয়ে যাইছে সিন্দুর বর্ণ বস্ত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର রক্তর নিদর্শন সেই পরি ভাবে আমি দেখু শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র এই ক্ষৌম বস্ত্র ଏହା ଅଛି ଆଉ ଯାହାକି লিনেন গার্মেন্ট ଏହା ବିଷୟରେ ଏଷ୍ଟର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା যায় ପଢିବା ନାହିଁ ଏହି ଯେଉଁ ক্ষৌম ବସ୍ତ୍ର ଏହା ରାଜକୀୟ ଲୋକେ परिधान करुथिले ता पूर्वरु कहबा पई चाहे जे शुभ्र बा शुक्ल एक धड़ा वस्त्र विषय रे कहा जाय शुभ्र क्षौम वस्त्र एही शुभ्र वस्त्र धड़ा वस्त्र होछि प्रकाशित 19 अध्याय 8 पद रे प्रकाश करा जाय एहा होछि साधु मानकर धर्म कर्म हालेलुया प्रथम वस्त्र सिंदूर वर्ण वस्त्र जीशुଙ୍କ रक्तर निदर्शन द्वितीय वस्त्र शुभ्र क्षौम वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्मर निदर्शन तृतीय वस्त्र धूम्र वर्ण वस्त्र बा बैगणिया वस्त्र जाहाकि राजकीय क्षमतार निदर्शन अटे से एस्टर 8:15 रे लिखा जाय तेबे गुणवती स्त्री देखंतु से की प्रकार वस्त्र रे वस्त्रान्वित प्रभु যীशु ख्रिस्टଙ୍କ रक्त ताहांकु आच्छादन करिछि से प्रभु যীशुଙ୍କ सम्मुखरे से ताहांकर साधु साध्वीर धर्म कर्म से करूछि सही परि भाबरे परमेश्वर ताहांकु कर्तृत्वर क्षमता दैचंती आ गुणवती स्त्री एई समस्त विषय प्राप्त है से कहे मु भविष्यत निमंते मु भयभीत नुहे हालेलुया आज प्रभु हमनकु आह्वान दियंती एही तीनोटी विशेष वस्त्र विषय किंतु एई तीनोटी वस्त्र आउ जने मध्य पिंधिचंती এই তিনটি বস্ত্র গুণবতী স্ত্রী পিন্ধিছি কিন্তু পৃথিবীরে আউ জনে স্ত্রী বিষয়ে প্রভু কহନ୍ତି যে কে তিনটি বস্ত্র সে অন্য জনে স্ত্রী মধ্য পিন্ধি অছন্তি প্রকাশিত বাক্য তার 17 অধ্যায় 3 এবং 4 পদ আমি পাঠ করিবা সেতিরে সে মতে আত্মারে প্রান্তর মধ্যকু ঘেনি জানতে মু জনে স্ত্রী লোকଙ୍କୁ গোটে লোহিত বর্ণ পশু উপরে বসিଥିବାର ଦେଖିଲି ସେହି ପଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାସୂଚକ ନାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାହାର ସପ୍ତମସ୍ତକ ଓ ଦଶଶୃଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଇଗଣିଆ ଓ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ଓ ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତା ତାହାର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ଅଶୁଚି କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
एही स्त्री क्यों वस्त्र पिंधिछि तीन पद कहे सेथिरे से मते आत्मारे प्रांतर मध्य को घेनी जानते मु जने स्त्री लोक को गोटे लोहित वर्ण पशु परे बसिथिबार देखिली हालेलुया आत्मा को द्वारा न देखिले ए स्त्री लोक को केही मध्य देखि पारिबे नाही जने मनुष्य ए स्त्री लोक को केबे देखि पारिबो नाही जोन को आत्मा नहीं गले ए स्त्री लोक को देखिबा पाए आउ से स्त्री लोक से गोटे लोहित वर्ण पशु परे से बसिसंती ए लोहित वर्ण एहा होछि सही स्कारलेट माने सिंदूर वर्ण এই স্থাନରେ ଆମେ দেখু চারি পদরে স্ত্রী লোক বাইগণিয়া ও লোহিত বর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এই স্ত্রী লোক সে গুণবতী স্ত্রী যেপরি যে বস্ত্ରରେ বস্ত্রান্বিত এই স্ত্রী মধ্য ସେହି বস্ত্ରରେ বস্ত্রান্বিত ए বাইগণিয়া বস্ত্র পিন্ধিছি গুণবতী স্ত্রী মধ্য বাইগণিয়া বস্ত্র পরিহিতা थिला ए लोहित वर्ण वस्त्र पिंधिछि से मध्य सही लोहित वर्ण बा सिंदूर वर्ण वस्त्र पिंधिछि चारि पद आमान को कहे पुनी सुवर्ण बहुमूल्य मणि और मुक्तारे भूषित गुणवती स्त्री विषय कहा जाए गुणवती स्त्री किए पाई पारे मुक्ता ठारो ही ताहार मूल्य अधिक आउ एई प्रकाशित 17 अध्याय स्त्री विषय मध्य कहा जाए से मुक्तारे भूषिता अटंती तेबे एई गुणवती स्त्री एवं एई प्रकाशित 17 अध्याय स्त्री एमानक भितरे विशेष पार्थक्य अछि से माने गोटे वस्त्र परिधान करिसंती किंतु हितोपदेश 31 अध्याय स्त्री आउ छे कि ईश्वर को भय करुथिबा स्त्री अटे हालेलुया ईश्वर को भय करुथिबा स्त्री से ईश्वर को मानुछि किंतु प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय स्त्री होसंती से ईश्वर निंदा रे परिपूर्ण अटे एमानकर वस्त्र एका किंतु जने लोक ईश्वर को भय करुछि आउ जने लोक ईश्वरंकर निंदा करुछि प्रभु आम मानकु आह्वान करंती प्रभु आम मानकु कथा कहंती प्रकृत गुणवती स्त्री हितोपदेश 31 अध्याय किंतु मिथ्या गुणवती स्त्री प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय एही जो मिथ्या रे से कि निज गुणवती स्त्री बोली बोलाउछ से एक्टिंग करूची से मिथ्या रे प्रकाश करूची हितोपदेश 31 रे गुणवती स्त्री जो वस्त्र पिंधिची मु मध्य से वस्त्र पिंधिची एही स्त्री मिथ्या ओटे एही स्त्री विषय कहा जाए ए महावेश्या आत्मा जोहन को नहीं एक विषय ज्ञात करंती कहिबा पई चाहू आमे समस्ते अछु वर्तमान पृथ्वी रे अनेक लोक अछंती अनेक लोक आमे कहू आमे यीशु को जानू किंतु सेही भितरे दुई प्रकार लोक अछंती गोटे प्रकार लोक सत्यतार सहित अछंती आउ गोटे प्रकार लोक मिथ्या रे अछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले गहम एवं बालुंगा गहम बुना जायछि बालुंगा मध्य आउ ए समस्त को छाड़ी दियो से माने बढ़िबे गहम मध्य बढ़ुछि बालुंगा मध्य बढ़ुछि प्रिय माने प्रभु आमानकु सतर्क करांती प्रभु आमानकु जागृत करांती आज आम मानकर उपासना जीवन केमती इस्राएलियो माने सेमानकर मध्य मंदिर थिला सेमानकर मध्य धर्मशास्त्र थिला सेमानकर मध्य उपदेश बाणी दिया जाउथिला पाप क्षमा पय बलि उत्सर्ग करा जाउथिला तथापि प्रभु सेमानकु भर्त्सना करूथिले जे सही लोक माने
प्रभुंकर वाक्य अनुसार चलती नहीं से माने केवल नाम को मात्र आसंती उपवास करंती नाम को मात्र आसंती बलि स्वर्ग करंती नाम को मात्र आसंती से माने आ समस्त धार्मिक रीतिनीति करंती किंतु हृदय प्रभु कठारु बहुत दूर रे प्रभु कहले तुमे केवल मुखरे तुमे कह किंतु हृदय आम ठारू बहुत दूर रे प्रिय प्रभु को लोक माने आसी आम मान को आह्वान दियंती आमे पास्टर हो प्रचारक हो बिशप हो आमे विश्वासी हो कि बा विश्वासिनी हो शेष दिन रे ही प्रकृत विषय प्रकाशित हेबो समस्त आमे चालुछु समस्त आमे बढ़ुछु किंतु शेष दिन प्रकाश करिवो वर्तमान समय रे केही कहि पारिबे नाही केही केउ लोक सत्य एवं केउ लोक मिथ्या अटे आमे हुए तो आमे आ सांसारिक भाव रे देखि कहि दो ए बहुत भलो आमे जानि ना अनेकों को कहू ए भलो नाय आमे जानि ना प्रिय माने किंतु परमेश्वर जानंती आमे माने देखू मु पढ़ी पढ़ी की कहि देबी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 पदरु केउ माने सत्य लेखा अछि आसो आम्भे माने आनंद ओ उल्लास करू एवं ताहांकु गौरव प्रदान करू कारण मेष शावकंक विवाहर समय उपस्थित आ ताहांक कन्या आपणाकु सज्जित करि अछि हालेलुया एहा होछि सही हितोपदेश 31 अध्याय रो सेही गुणवती स्त्री जे कि निजर बर निमंते सज्जिता एक कन्या हे अछि लेखा होछि 8 पद ताहाकु शुभ्र ओ परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिधान करिबा निमंते दियागला सेही सूक्ष्म वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्म गुणवती स्त्री जे कि एही शुभ्र खौम वस्त्र परिधान करथिले एही शुभ्र वस्त्र शेष दिन रे एही गुणवती स्त्री जे निज बर पई सज्जिता होते ताहांकु दियागला सेही सूक्ष्म वस्त्र ताहार धर्म कर्म अटे नपद कहे सेते बेले से मते कहिले लेख जो माने मेष शावकंक विवाह भोज को निमंत्रित से माने धन्य आ से मते कहिले एही सबु ईश्वरंक सत्य वाक्य हालेलुया आज वाक्य प्रचार करा जाउछि वाक्य को हमें सुनुछु किंतु वाक्य को धारण करि पारु नाहु आबो मानकर एही समस्त धर्म कर्म प्रार्थना एहा बाही कहे जाउछि पवन रे उडी पळै जाउछि मोर प्रिय माने केते वाक्य सुनिले विश्वास बढ़ु नाय प्रार्थनार जीवन गभीरता को जाई पारु नाय आमे केते कोन करूछु ईश्वर को वाक्य बिहुने करूछु प्रभु आमन को आह्वान दियंती जदि ईश्वर को वाक्य बिहुने कोनोसी कार्य मध्य करा जाय तेबे सेही लोक मिथ्यावादी हेछि केवल ना को कहिबो मु सिंदूर वर्ण वस्त्र पिंधिछि ना को कहिबो मु बाइगणिया वस्त्र पिंधिछि ना को कहिबो मु शुभ्र वर्ण वस्त्र पिंधिछि किंतु भितरे किछि नाही प्रभु कहंती जे से शेष दिन रे जेतेबेले विचार दिन आसीबो सेही समय रे प्रकृत रे जे कोनोसी लोक वाक्य रे बंचिछि वाक्य अनुसार निजर जीवन को बिताइछि ताहा कोई शुभ्र वर्ण प्रभु यीशु ख्रीष्ट से दिन प्रदान करिबे हालेलुया प्रभु एई समय रे आम्भ मान को आह्वान दियंती से आम्भे माने निज निज को चेक करिबा समीक्षा करिबा एवं सही परि भाव रे आमे आमन एही विश्वास रो जीवन रे आमे माने बढ़िबार आवश्यक लेखा जाय शेष पद मु पढि दउची 10 पद तहिरे मु ताहांकु प्रणाम करिबा निमंते ताहांको पाद तळे उबुड हेली सेथिरे से मते कहिले सावधान एहा करो नाही मु तुमरो ओ यीशु को साक्षी जे तुमरो भातृगण सेमानकर सहदास ईश्वर को प्रणाम करो यीशु को विषय को साक्ष्य तो भाववाणी रो
ସାର ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବ ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସେ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ସଦୃଶ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ ଓ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି ସେହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କର୍ମଶୀଳା ଥିଲେ ସେ ଅଳସୁଆ ନାହିଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ এই তিনটি বস্ত্রକୁ ସେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର ଖୌମ ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର এই ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ କରି ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ସେ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦରୀ ହଉଛି ସେ ଲୋକ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ करे आम्भमानकर पाहिक भूषण आमे बहुत भल देखा जाय पारू किंतु आम्भमानकर ठारे जदि ख्रीष्टीय गुण नाय तेबे नितांत भावरे केते सुंदर हेले मध्य आम्भमानकु कोन असुंदर बोली कहिबे आमे जेते असुंदर हे पछे जदि आम्भे माने ख्रीष्टनकर गुण को परिधान करिछु सेई जहां में देखुथिलु परम गीतरे कृष्ण वर्णा कलाल कहले मध्य समस्ते प्रभु तांकु सुंदरी बोली कहिबे वरंक निमंते प्रस्तुता कन्या बोली कहिबे प्रभु आज आमानकु आशीर्वाद करंतु गुणवती स्त्री से कि आउ विश्वस्तता एवं तार कर्मशीलता एवं से वस्त्र होची ताहांकर बल एवं परमेश्वर से कि तांकु पुरस्कार मुकुट दियंती ताहांकर शोभा को तांकु परिधान करंती तेणु करी जो वाक्य हम माने चिंता करिछु कि बल और शोभा को से वस्त्र रूपे परिधान करिसंती एवं भविष्य काल विषय से हास्य करंती से भयभीत होंती नाही प्रभु आम्भमानकु आशीर्वाद करंतु से गुणवती स्त्री रो गुण आमे समस्तक जीवन रे कार्यकारी हो आसंतु प्रार्थना करिबा स्वर्गीय पिता धन्यवाद तुमे वाक्य रूपी ईश्वर ए शेष दिन मानकरे सत्य रे आत्मा रे तुमर निकटवर्ती हेबा पाए दया करी तुमे आमानकु सहाय्य करो आमे दुर्बल पिता विभिन्न प्रकार असंतोषकर विषय परिपूर्ण मनुष्य अनेक समय आमे झुंटी पड़िबा मनुष्य कथारे भाषारे देखिबारे हम चिंता धारारे पाप करि थाउ पिता प्रार्थना करूछु दया करी क्षमा करो तुम वाक्य प्रमाणे आम्भे माने जेपरि तुम वाक्य रे वृद्धि पाइबो आम जीवन जेपरि तुम वाक्य रे वृद्धि पाइबो एवं आम्भे माने गोटे गोटे सत्य वाक्य हेबा को पारिबो दया करी तुमे सहाय्य करो दया करो पिता मंडली आमे समस्त तुमे आशीर्वाद करो से शेष दिन रे आमे समस्त से गुणवती स्त्री सदृश पिता से सुसज्जित कन्या सदृश पिता तुम सहित साक्षात करिबा पाई सहाय्य करो धन्यवाद सहित ए प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मांगुछु आमेन।